Good morning, students. How are you? Good morning, student. How are you? Let us start chapter 1, civics chapter 1, page number 2, paragraph first. Uh, Pace in the expansion of democracy, the beginning. This map, this map do not tell us much about what happened before the 12th century. The story of the modern democracy begins latest 2 centuries age. You may have read the chapter on French Revolutions 1789 in the history book of this process. This popular uprising did not establish a secure and stable uh, democracy in France. Throughout in the 19th century, democracy France France was overthrown and restored several times. Later, the France Revolution inspired many struggles for democracy all over Europe. So, डेमोक्रेसी का फेसेस किस प्रकार से शुरू हुआ है? सबसे पहले बिगनिंग, ये जो हमने पिछले पेज नंबर 9 पर जो मैप देखा, ये आपको ये नहीं बताता है कि 12वीं शताब्दी के आसपास दुनिया भर में डेमोक्रेसी को लेकर क्या हुआ। ये इस स्टोरी डेमोक्रेसी के नहीं है। लेटेस्ट 2 सेंचुरी में ये जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ है 1799 में, जो आपके हिस्ट्री के बुक्स में दिया है, वहाँ से आपको इसको डिटेल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी प्रसिद्धता किस प्रकार से इस्टेब्लिश हुई है, खास करके डेमोक्रेसी फ्रांस में। यहाँ पर 19th सेंचुरी में जो डेमोक्रेसी का जो एक बहार आया है फ्रांस में, उस रिवॉल्यूशन के बाद किस प्रकार से डेमोक्रेसी को लेकर यूरोप की कंट्री में और विशेषकर कि फ्रांस में किस प्रकार से स्ट्रगल्स हुए हैं। इन द ब्रिटिश In the Britain, the process towards democracy started much before the France Revolution, but the process was very slow throughout the 19th century and the 18th and 19th century. Series of the political events reduced to power of monarchy and feudal lords. The rights to vote was generated to more and more people around the same time as the French Revolution. The British colonies, the North America, declared themselves important in 1776. In the new few year, the colonies came together to form United States of America. They adopted a democracy. इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी की प्रोसेस शुरू हो चुका था, लेकिन वहाँ पर इसका प्रोसेस बहुत ही धीमे चल रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद से ही 18 और 9th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल सीरियस जो इवेंट तैयार हुए, खास करके मोनार्ची और फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट। यहाँ पर जो वोट करने का राइट जनरेट किया गया, तो इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े और सेम टाइम में ही जो रिवॉल्यूशन चल रहा था फ्रांस में, वही कॉलोनियन जो उपनिवेशवाद कंट्रीज थी नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर भी 1776 में नॉर्थ अमेरिका को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ के कुछ सालों के बाद जब उपनिवेशवाद ख़त्म हुआ, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया गया, वहाँ पर उसको ऐड किया गया। दिस इज एंड नेक्स्ट पेज नंबर 11, कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787, but here too the right vote was limited very few. In the 19th century, struggles for democracy often centered around the political equality, freedom and justice. One major demand was the right for every adult citizens to vote. Many European countries that were becoming more democratic did not entirely allow all people to vote. In some countries, only people owning property had right to vote. Often, women did not have right to vote. 19 तो 1817
सॉरी 1787 के बाद का जो टाइमिंग रहा है वहाँ पर डेमोक्रेसी लाया गया, लेकिन कुछ लिमिटेड व्यू में 19 सेंचुरी का जो स्ट्रगल्स के बाद जो डेमोक्रेसी क्रिएट किया गया है उसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस को सबसे ज़्यादा वहाँ पर डिमांड रही है। और जो भी एवरी एडल्ट जो यंग या जो समझदार सिटीजन्स है उन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए वोट करने का राइट दिया गया है, लेकिन वो राइट्स सबके लिए सेम नहीं था। वहाँ पर जो महिलाओं को वोट करने का अधिकार नॉर्थ अमेरिका में नहीं दिया गया। द blacks all over the country could not exercise the right to vote until 1965. This struggling democracy wanted to right generated universal to all adults, men and women, rich and poor, white and black. This is called universal adult franchise of universal suffrage. The box were tell the when universal suffrage the generate in many countries of the world. लेकिन जब वहाँ पर डेमोक्रेसी तो इस्टेब्लिश हो रहा था, लेकिन डेमोक्रेसी में सबको एक जैसा राइट्स नहीं दिया गया था। इसलिए 1965 में फिर से वहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ एक जो डेमोक्रेसी का जो वास्तविक सच है उसमें इन बातों को ज़्यादा डिमांड किया गया कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए सभी को इस प्रकार का राइट मिलना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष, श्वेत हो या ब्लैक, अमीर हो या गरीब। एक जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है जो सदा और सर्वदा बना रहने वाला जो सत्य है उसको ही उन्होंने लिया गया। उसके लिए उससे स्ट्रगल्स किया गया है और किन देशों में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए और जो सफ़र किया है उन्होंने, वहाँ उसका चार्ट यहाँ पर दे रखा है। कब किन देशों में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को लेकर स्ट्रगल्स किए गए हैं और वहाँ पर किस प्रकार से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड हुआ है। सो 1893 न्यूजीलैंड, 1917 रशिया, 1980 जर्मनी, 1919 नीदरलैंड, 1928 ब्रिटेन, 1931 श्रीलंका, 1934 तुर्की, 1944 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 इंडिया, 1951 अर्जेंटीना, 1952 ग्रीस, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 यूएस, 1970 स्पेन, 1994 साउथ अफ्रीका. So as you can see, New Zealand was the only country where every adult had voting right. But you go back to map, you can see many other countries are markets as the democracy by the beginning of the 12th century. These countries had by them government elected by a sufficient number of people, mostly men, and the generate political freedoms. In some measure, early democracies the established in Europe, North America and Latin America. तो इस प्रकार सन 1900 से ही न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री था जहां पर वोटिंग राइट दिया गया है। और उन्होंने पिछले जो मैप दिया गया है वहाँ से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई है। 12वीं शताब्दी में ही कुछ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट इलेक्टेड का जो सिस्टम शुरू हो चुका था, परंतु यहाँ पर मोस्टली मैन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो सेम नहीं था। इसलिए अर्ली डेमोक्रेसी में जो इस्टेब्लिश हुआ यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका खासकर लैटिन अमेरिका में इस प्रकार के सिचुएशन क्रिएट हुए हैं। सो दिस इज़ अ